વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. Friends, if you rest, you rust. Remember this. We are today going to start lesson number 8, and the name of this lesson is cell, the unit of life. We are to study about the cell in this chapter. This is the first lecture, so not too much area we are going to cover of this lesson. So some of the theories, some of the topic we are going to see, like for example an overview of cell that we will see today. But in this you will come to know how many kinds of the cells occur, what are there inside the cell. Cell has so many different shape, उसकी साइज में भी अलगता होती है, एंड इट्स शेप वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस. मतलब जो सेल काम कर रहा है उसके हिसाब से उसका शेप होता है. So many interesting thing you are going to study in this lecture. So first of all we must understand that what might be the definition of cell. Since last so many years, I would say that since last 4 to 5 years, you have been studying about the definition of cell. The definition of cell is something like this. It is a structural and functional unit of living organism. Structural and functional unit. So suppose we will think about ourselves. Our body has got so many cells. That is why we are called multicellular organism. And some of the organism on our earth, they have only single cell as a body. That is why they are called unicellular organism. So unicellular organism, the organism whose body is made up of only one cell, they are called unicellular organism. I will write only one term, unicellular organism. Unicellular organism. And one another term, that is multicellular organism. Generally higher categorized plants and animals are included in multicellular organism. So many multicellular, जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, multicellular organism हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं. Okay, so if we think about some of the examples of unicellular organism, certainly if I ask you one question, give me only one name of an organism whose body is having only single cell, the answer will be, आपका आंसर क्या होगा? अमीबा और पैरामीशियम होगा ना. One more I can tell you, it's a bacterium. બેક્ટેરિયા પણ યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમમાં જ આવે, અમીબા પણ એમાં જ આવે, પછી પેરામીશિયમ એમાં જ આવે. આ બધા ડિફરન્સ શું છે that we will see later on. But if we think about multicellular, if you see any plant outside your home, कोई एक नीम है, या फिर अपना बॉडी ले लो, या फिर क्रोकोडाइल का बॉडी ले लो, या फिर मंकी का ले लो, हमारे जो आजू बाजू जो भी एनिमल्स है, या फिर कोई भी फ्लाई ले लो, हाँ, दिस ऑल आर मल्टीसेलुलर बिकॉज उसका बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं. सो जो कोई भी प्लांट और एनिमल का बॉडी में बहुत सारे सेल रहते हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जिसके पास एक सेल वही उसका बॉडी, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो one thing is very very clear, that we can see multicellular organism through our naked eye, whereas this can be seen under the microscope only because they are very minute. हाँ, इसके अंदर एक हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा, इट्स ए ग्रुप, सबसे छोटा सेल, उसकी साइज भी हम देखेंगे. हाँ, सो दिस टू टर्म यू आर टू रिमेंबर. सो सेल की अभी एक जो डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ। हाँ, तो वो स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट कर रहा है। हमारा बॉडी का शेप ऐसा है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। वो क्यों है? दैट इज ड्यू टू हैविंग सो मेनी सेल, उसका अंदर अरेंजमेंट हुआ है। तो ह्यूमन का कुछ अलग है, लायन का कुछ अलग है, स्नेक्स का कुछ अलग है। अगर अपन लोग देखें तो स्नेक का जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग है ना। हर एक डिफरेंट वेराइटीज जो है स्पीसीज में, वो सब अलग अलग रहता है। सो एक्चुअली सेल्स कंस्ट्रक्ट अवर बॉडी, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल किया गया है। फंक्शनल, वी आर लिविंग, we know very well that there is a semi-fluid in the cell which is called cytoplasm. This is the main arena, main area where all the living processes are going on. It keeps our cell in a living state, and in turn we remain as a living state. हम भी अपन अपन लोग हम भी अभी लिविंग है। क्यों है? क्योंकि हमारा सेल जिंदा है। भाई सेल जिंदा है, cell is living. On what basis we can say that my cell is living? Because we are living. So inside the cell some of the processes are going on. These processes are become possible with the help of the specific kind of the substance which is called enzyme. So this is new term, enzyme. Let me write over here. I will teach you so many things about enzyme. Enzymes are generally made up of a protein. That we'll see how they act. There is a one different lesson about enzyme that we'll see in the lesson number 9, okay, which is called biomolecule. जो उसका नाम है वो है बायोमोलिक्यूल। तो जो एंजाइम है वो अपने सेल में है, तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही होती है। ये प्रोसेसेस जब चल रही होती है उसका मतलब ये है कि ये सेल जिंदा है, उसके अंदर काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। तो हमारा बॉडी को जो अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है स्ट्रक्चरली और अंदर काम कर रहा है फंक्शन, अभी ये अंडरस्टैंडिंग देखो सेल की जो डेफिनेशन है उसकी, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरा बॉडी सेल से कंस्ट्रक्ट हुआ है, अंदर काम हो रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दो जो टर्म है उसका मीनिंग मैंने आपके सामने रखा साइंटिफिकली मैनर में, बायोलॉजिकली, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ सेल। उसके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट लेने हैं। आई वुड राइट टाइप ऑफ सेल। ये सेल का ओवरव्यू लेना है, उससे पहले टाइप ऑफ सेल हमारी बुक में जो दिया गया है मेनली 2 टाइप। आपको अगर कोई बोले कि टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप में से कई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई लड़का होती है लड़की है, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेक्स, इधर मेल और फीमेल। कोई बोलेंगे होशियार है, ब्रिलियंट है, पुअर है, पढ़ाई में ठोठ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटेलिजेंसी। So by keeping in our mind on the basis of some of the views, there will be always type kind. ये अपने को पता होना चाहिए। बायोलॉजी में आगे जब भी किसी का कोई भी टाइप का कोई भी हेडिंग का हाँ ऐसा टाइप आएगा, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, ये टाइप कुछ बेस लेके दिया गया है। So on the basis of which thing here 2 kinds of the cells occur, ये बेस आपको ढूंढना है। मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। तो एक हेडिंग रखता हूं कि फर्स्ट काइंड ऑफ द सेल इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल उसको हम बोलेंगे, दूसरे को यूकैरियोटिक बोलेंगे। यूकैरियोटिक सेल। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल वो सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर है। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, तो
जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, उसका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक ही होता है। मगर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका प्रोकैरियोटिक भी होता है, यूकैरियोटिक सेल भी होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। उसका मतलब ये हुआ कि all prokaryotic cells are unicellular, but all unicellular cells are not prokaryotic. Some of the unicellular cells are eukaryotic. Okay, and if I would say that multicellular living organism, for example we people, for example lizards, for example any tall plant you see outside your body, they all are having eukaryotic cells. तो अभी देखना, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सेल तो सेल है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेरी वेल डेवलप्ड है। प्रो, प्रिमिटिव, प्राथमिक कक्षा का न्यूक्लियस है, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंडर डेवलप है, थोड़ा सा कम है। कैरियन न्यूक्लियस। तो अभी क्या हुआ, तो कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस हाईली डेवलप नहीं है, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव डेवलप, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है वो सेल को हम यूकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमको पढ़ाई करनी है टिपिकल एनिमल सेल, हमारे जो चिक के सेल होते हैं, हमारा जो गाल होता है उसके अंदर से ले ले, उसके ऊपर मीथिलीन ब्लू रखे और माइक्रोस्कोप में देखे। सेम ऑनियन, ऑनियन पिल ले लेते हैं, उनमें से जो निकले, मतलब वो ऑनियन का सेल, तो ऑनियन तो प्लांट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्टडी करना है। इसके अंदर हमको स्टडी करना है बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का सेल। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। तो अभी कुछ बच्चे को तो समझ में आ गया कि हमने कौन सा बेस लिया टाइप ऑफ सेल में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल, तो बेस क्या आया, on the basis of the development of nucleus. You cannot tell that on the basis of the nucleus only. If you would say that on the basis of only nucleus, तो उसका तो बहुत सारा मतलब निकलता है कि भाई न्यूक्लियस का टोटल नंबर के हिसाब से ये दो ग्रुप दिया गया है, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट या प्रेजेंट के हिसाब से नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल अकर्स, prokaryotic cells, eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the such cells whose nucleus is not developed. Eukaryotics are the such cells whose nucleus is very well developed. अभी हम ये देखेंगे कि ये प्रिमिटिव डेवलपमेंट और हाईली डेवलपमेंट न्यूक्लियस का होता है, वो अपने को कैसे पता चलेगा। ओके, सो लेट मी ड्रॉ हियर एनिमल सेल। एक थोड़ा सा एनिमल सेल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों। ये हमारा लेक्चर भी आज प्रिमिटिव ही है, प्राथमिक लेक्चर ही उसको बोलते हैं। ये एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अभी एक यहाँ पर बैक्टीरियम का सेल ले लेते हैं, ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं बैक्टीरियम। जो मोटाइल होता है बैक्टीरिया, जो चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन, उसके लिए यहाँ से फ्लैजेलम बाहर आएगी, वो हम देखेंगे। हमको एक लेक्चर में प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियम का सेल का स्टडी करना है, एक लेक्चर पूरा का पूरा इसके पीछे लगाने वाला हूं मैं। अभी ये एक एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। थोड़ा सा प्लांट सेल यहाँ पर ड्राइंग कर देते हैं।
अभी पहले मुझे न्यूक्लियस के ऊपर सेंटर फोकस करना है, तो सेंटर में लोकेट हुआ है न्यूक्लियस विथ डेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक आउटर मोस्ट होता है, एक इनर मोस्ट होता है, टू मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पोर रहते हैं। सो दिस आर द पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल। नाउ दिस इज न्यू टर्म फॉर यू, you might have heard about chromosome in your standard 8, 9, 10 when you are studying about cell division। क्रोमोसोम के बिना आप सेल डिवीजन स्टडी नहीं कर सकते। तो अभी हम तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं उसको क्रोमोसोम का नॉलेज नहीं है, मगर नाम कहीं सुना हुआ लगता है। तो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं। ये क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। सो इट इज मेड अप ऑफ टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ईच इज कॉल्ड क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये एक को क्रोमेटिड बोलेंगे, मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड दो है। द पार्ट एट विच these two chromatids remain in contact with each other, this is called centromere, वो उसका सेंटर वाला पार्ट। और ये क्रोमेटिड के ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। जब सेल डिवीजन होगा तब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसके साथ बाइपोलर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, वो जब आएंगे इसके बारे में डिटेल तब हम देखेंगे, राइट। तो अभी आपको तो एक ही याद रखना है कि भाई क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, इतना ही याद रखना है और ऐसा होता है। अभी अपने को जानना है कि भाई ये जो क्रोमेटिड है ये कैसे बनी हुई है। अगर अपन उसको खोले तो उसमें से क्या निकलेगा, तो उसमें से डीएनए निकलेगा, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम आपने सुना हुआ है, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, डबल हेलिकल। इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम आएगा। ये अभी देखो, ये इसका नाम मैंने सेंट्रोमियर रखा, इसका नाम काइनेटोकोर है। अगर ये सेंट्रोमियर में से यहाँ पर देखूँ तो ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये उसकी भुजा बोलते हैं, हाँ? उसको आर्म बोलते हैं, अपना भी आर्म होता है ना, ये इसका तो फोर आर्म्स है, दो क्रोमेटिड है, एक सेंट्रोमियर है, दो काइनेटोकोर है। अभी आपको जो याद रखना है वो इसके अंदर जो दिया गया है वही सिर्फ बस। अभी मैं जा रहा हूं कि दिस क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए में मैंने यहां पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन लगा दी है। घबराना मत, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये सब आएगा। तो आप अभी ऐसा समझो कि डीएनए इज समथिंग लाइक थ्रेड। प्लस क्या होता है, तो क्या क्रोमेटिड में डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को ऐसे हम रख देते हैं, ऐसे, ये प्रोटीन है। आपको पता है हमको कौन सी चीज खाने से प्रोटीन मिलता है, पता है? चीज खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है, चीज में फैट होती है, सीरियल्स। આપણે જે બધા કઠોળ ખાય, अपन लोग जो कठोळ खाते हैं, चना, वटाणा, वाल, उनमें से अपने कोई प्रोटीन मिलता है। जो हमारा मसल्स है उसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन है, हाँ? तो वो सब खाओ, अंडे में से भी प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीनियस जो भी अंदर एक्टिन, मायोसिन नाम के प्रोटीन है वो बनेंगे। उसके बाद कसरत करो, टूटेंगे, फिर से बनेंगे, कसरत करो, फिर से टूटेंगे, फिर से बनेंगे, तो वो धीरे धीरे अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनेगा ना।
एक प्रोटीन होता है, एक डीएनए होता है, ये दो मेन कंपोनेंट है। अभी क्या होता है, क्या है देखना, ये जो प्रोटीन है ये एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। इसके ऊपर ये डीएनए ऐसे व्रैप हुआ होता है, उसके ऊपर વીંટળાય, આપણે જેને ગુજરાતીમાં વીંટળાય કહીએ ને એમ હોય, इट इज wrapped। तो यहाँ पर ये मान लो कि ये एक प्रोटीन है, तो इसके ऊपर एक डोरी में ऐसे व्रैप कर दूं, तो जो डोरी है वो डीएनए है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ये प्रोटीन और ये जो डीएनए है, डीएनए उसको मैं ब्लू कलर से अभी ड्राइंग कर रहा हूं। दो दो व्रैपिंग होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा। और ये है वो, इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ होता है। अभी सिर्फ समझने के लिए ये फिगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको अभी धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। ये समझने वाली फिगर हो गई, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ये होनी ही चाहिए। इसका मैंने मतलब ये एक टाइप का पैकेजिंग है। ये पैकेजिंग अभी मैं आपको साइंटिफिकली मैनर में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ ऐसा लगे कि ओके ये जो क्रोमेटिड है उसकी थिकनेस इतनी है, हाउ दिस ईच क्रोमेटिड इज फॉर्म। सो वेरी सिंपली you can remember only one thing, that protein and DNA together constitute chromatid in this fashion, in this manner। ऐसे याद रखना है, correct। somebody might be thinking about genetic material, it is DNA, genetic material is DNA। वो हम साबित करेंगे 12th में, why DNA is considered as genetic material, because it carry so many information from our parents to offspring। हाँ, वो सब आएगा। हमें 11th में इसको भी खोलना है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो भी अपने को देखना है। अभी आपको इतना याद होना चाहिए कि प्रोटीन प्लस डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका भी आएगा डीऑक्सीरिबोज, उसके अंदर एक शुगर है, वो डीऑक्सीरिबोज है। न्यूक्लिक एसिड, एज दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड उसका नेचर एसिडिक था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीरिबोज, it is a constitutional part of DNA, and stands for nucleic, so this indicates its discovery from the nucleus, acid, this indicate its nature। Similarly RNA ribonucleic acid, right, that we will see later on। तो अभी आपको इतना पता चल गया कि ये जो क्रोमेटिड है वो ऐसी होती है ना। देखना अभी यहाँ ऐसा क्रोमोसोम है ना, ऐसा क्रोमोसोम, we will be able to see this kind of the chromosome in the cell when the cell is in cell division phase। वो एक मेटाफेज कहलाता है। when the cell is in the metaphase, then and then only we can see this kind of the chromosome, otherwise these remain in the form of network like this। अभी अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना, इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक थ्रेड लगा दिया है। वन मोर, विद द हेल्प ऑफ रेड कलर आई कैन ड्रॉ डीएनए और प्रोटीन ही मुझे ड्राइंग करना है ना। वन मोर आई कैन ड्रॉ ग्रीन कलर से, ओके। सो I am drawing now chromatin material which remain within the nucleus, and this is the nucleus which has dense membrane। But if we think about the nucleus of the prokaryotic cell, उसके पास क्या है, I am drawing DNA, उसके पास क्या है, DNA और प्रोटीन with the help of red color। कोई इसकी माफिक सिस्टेमिक अरेंजमेंट नहीं है, इट्स ए बंच, प्रोटीन और डीएनए साथ में यहां पर पड़ा हुआ है। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो व्हाट वी कैन से दैट eukaryotic cell will have dense membrane which is called nuclear membrane,
प्रोकैरियोटिक सेल लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला डेवलप्ड हुआ न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल। तो भाई प्लांट सेल में भी हम मतलब अपन लोग यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर उसका पोर का ड्राइंग कर लेते हैं। अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भी अभी डिफरेंट कलर यूज नहीं करना है, अभी सिर्फ ये ब्लैक कलर ही यूज करेंगे। सिर्फ 2 थ्रेड मैंने यहाँ पर ड्राइंग किए हैं। ओके, अगर ये एनिमल सेल हमारा होता तो ऐसा थ्रेड मुझे 46 ड्राइंग करने पड़ते। मैं कभी भी नहीं करूँगा, मैं आपको बोल दूंगा कि ये 46 है मान लो, ऐसा है ना? अब ये जो प्लांट सेल है उसमें बाहर सेल वॉल होती है, सबसे बाहर सेल वॉल, ये सेल वॉल है। सेल वॉल अलग से भी पढ़ाई करेंगे। उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब्युलर पैसेज होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद इमीडिएटली सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो बच्चों अच्छी तरीके से याद रखो कि जो एनिमल सेल है उसमें बाहर की जो बाउंड्री है वही सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अंदर है, उसके बाहर सेल वॉल है। दिस इज नॉन लिविंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सब सेल वॉल की जब शॉर्ट नोट आएगी तब आएगा, राइट? और ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये सेमी फ्लूइड होता है, वो लिक्विड भी नहीं और सॉलिड भी नहीं, दैट इज वाई सेमी। रेडी? एक डिफरेंस आपके माइंड में समझ में आ रहा in between prokaryotic and eukaryotic. This is on the basis of the development of nucleus. If nucleus does not contain nuclear membrane, then it is called prokaryotic cell. The cell that does contain highly developed nucleus with nuclear membrane, it is called eukaryotic cell. Animal cell में चिक का, ऑनियन पील का, તો ઓનિયનની છાલ એટલે હું તો કે ઓનિયનને આપણે કાપી નાખીએ એટલે वी विल फाइंड सो मेनी लेयर्स इन चाय, उनमें से एक लेयर थोड़ा सा थिक होता है उसको बाहर काटा, बाहर निकाल लिया। तो वो जो बाहर हमने निकाला, इफ विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप we will try to remove the outermost very thin layer. That thin layer we have to select and that we are to put it on our slide, and then we are to put it 1 drop of methylene blue which is dye. So this methylene blue will give color to nucleus as well as cell wall. So we can clearly see this kind of the plant cell in which we will be able to see nucleus as well as cell wall. Methylene blue. Nowadays in the treatment of the corona, some doctors are supplying methylene blue. What is its use? ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर सकता है, वो बढ़ा सकता है, फाइब्रोसिस को ब्लॉक कर सकता है, ये सब आएगा। फाइब्रोसिस क्या है ये सब लेटर ऑन। अभी अपने को बाहर नहीं जाना है तो हम इसके अंदर आएंगे, राइट? नाउ इफ वी मूव ऑन टू सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स, some of the organelles are membrane bound, some do not contain membrane. इसके अंदर भी होती है, इसके अंदर भी होती है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होता है, याद रखना। ये सिर्फ सेल का ओवरव्यू है। ओके, सो इफ आई पुट हियर रिबोसोम, तो यहां पर भी मुझे रिबोसोम लगाना है। तो रिबोसोम्स
मे बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये रेड कलर का रिबोसोम, मैं सिर्फ बोर्ड वर्क में लिख रहा हूं आर, रिबोसोम्स का आर। एक ऑर्गेनेल होती है जिसको बोलते हैं सेल का किचन। जनरली दिस ऑर्गेनेल्स आर फाउंड एट द पेरिफेरल साइड, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीनिश 8, 9, 10 में आएगा, आ गया है ना, 8, 9, 10 में ये सब आया था। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन कॉल फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 प्लस H2O बाइंड होकर ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू गेट एनर्जी फॉर दिस सेल्स। सो दिस इज द किचन एज ग्लूकोज इज अ फूड। मगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, हमारे सेल में नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया, this is the powerhouse of cell, stores energy in the form of ATP, and ATP molecules are synthesized. ATP molecules, so many molecules are synthesized within the mitochondria. So that is why it is called powerhouse of the cell, because every work in our body, any function occurs in our cell, required energy, and the source of this energy is ATP. So in this molecule ATP, energy is stored inside. Now what is the source of this energy which is stored in the ATP? The source of the energy is glucose. When the glucose is broken down, it is called oxidation, maybe aerobic or anaerobic. Energy is liberated and it is stored in ATP. तो एकदम सिंपल है, जो हम खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, वहां पर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो ब्रेक डाउन में ये माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। तो वो जब ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज, तो उसका जो बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनमें से एनर्जी लिबरेट होगी। ये एनर्जी के थ्रू ADP प्लस P, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट बाइंड हो जाता है, तो ये एनर्जी उसके अंदर अभी स्टोर्ड हो गई। अभी हमको कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चपटी लगानी है, बोलना है, तो ये ATP ब्रेक डाउन होगा, उनमें से एनर्जी बाहर आएगी, ये एनर्जी से ये सब काम होगा। तो बहुत ही सिंपल पाथ हुआ, हम जो खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटा, एनर्जी बाहर आई, ATP के अंदर स्टोर है, ATP टूटा, एनर्जी बाहर आई, अपना काम हुआ। तो ये सब प्रोसेस चल रही है, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन अभी सरवाइव कर रहे हैं, मगर ये सब प्रोसेस क्लोज हो गई, नहीं हुई, तो हम फंक्शन नहीं करते, हमारा डेड बॉडी हो जाएगा, राइट। तो एनर्जी बहुत ही काम की चीज है, तो खाना पड़ेगा डेली, राइट। वरना जो स्टोर्ड फूड रहता है वो धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो खाना बहुत ही जरूरी है, नॉर्मल रेंज में, क्वालिटी वाला, नॉर्मल अमाउंट में। तो इसको ऑर्गेनेल बोलते हैं, इसको भी ऑर्गेनेल बोलते हैं। रिबोसोम्स है वो ऑर्गेनेल है, उसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, मगर उसके पास लेयर नहीं है, उसके पास लेयर नहीं है। और थोड़ी सी ऑर्गेनेल ले लेते हैं, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ड्राइंग करनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं उसको, हम शॉर्ट में लिखेंगे ER। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी रफ क्या होता है, तो इफ आई टच दिस सरफेस, इफ आई फील रफ, then I would say that this surface is rough, but now it is very very smooth. So this is the endoplasmic reticulum, membrane bound organelle. अगर इसके ऊपर रिबोसोम रहेगा, इसके ऊपर अगर रिबोसोम रहेगा तो वो रफ कहलाएगी, और अगर इसके ऊपर रिबोसोम नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल सपोज इतनी, तो वो स्मूथ कहलाएगी। तो इसके ऊपर रिबोसोम नाम की ऑर्गेनेल अगर स्टिक हुई है उसके ऊपर, જેની ઉપર ચોંટી ગયેલી છે, તો આપણે if we touch it we feel rough, that is why it is called rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Okay, some of the micro bodies are there inside, and peroxisome is there inside. Peroxisome is, these are the name of organelles, right.
अभी if we see in the animal cell we find centrosome, उसका 2 यूनिट, अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उसमें भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, ये सेल डिवीजन के टाइम बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है. These two are called centriole, but collectively it is called centrosome. These two units are arranged at right angle to each other. You can see here. Right angle જ હોય. આને તમે કોઈ દિવસ પેરેલલ ડ્રોઈંગ ન કરી શકો. Centrosome. Right? So, see, some of the MCQ you can see, the organelle which is observed in the plant cell, not in the animal cell, it is chloroplast. The organelle which is present only in the animal cell, centrosome, not present in the plant cell. Right? The organelle which is present in all these three cells, that is in bacteria, in our chick cell, in onion peel, answer would be ribosomes. So remember one thing, that membrane bound organelles are absent in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होता है. राइट? अभी थोड़ी सी ऑर्गेनेल आपको बता रहा हूं क्योंकि ये लेसन है, उसके अंदर हेडिंग ही आएगा एक एक ऑर्गेनेल का. गोल्जी बॉडी वो इसके अंदर नहीं ड्राइंग करेगी, इसके अंदर भी होती है. इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी. लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी उसको बर्थ देता है, ये लाइसोसोम. एल करेंगे लाइसोसोम, गोल्जी का GOL करेंगे, लाइसोसोम का LYS करेंगे, रिबोसोम का RIB करेंगे. पूरा नाम हर एक का नहीं लिखने वाला हूं, आपको याद रखना है. रिबोसोम तो याद रहेगा, गोल्जी बॉडी याद रहेगा, लाइसोसोम याद रहेगा. इट इज सुसाइडल बिग. जब इसका आउटरमोस्ट लेयर रप्चर हो गया, समझो ये सेल गया, उसके अंदर एंजाइम रहते हैं, ये एंजाइम से ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा तो सेल खत्म. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बिग. ये सब पढ़ाई में आने वाला है, नो नीड टू वरी. प्लांट सेल का एक बहुत अच्छा फीचर, उसके अंदर बहुत बड़ी, अभी मैं थोड़ी सी छोटी ड्राइंग कर रहा हूँ, वैक्यूल होती है. वैक्यूल, वैक्यूल का भी रोल आएगा आगे. So some of the organelles I have put in front of you. अभी ये गोल्जी बॉडी इसके अंदर भी होती ही है, लाइसोसोम इसके अंदर भी होता ही है. थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग कर देते हैं तो बच्चे लोग को ऐसा नहीं लगे. गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ओके, इसके अंदर होती है. दूसरा मैंने क्या बताया, पेरोक्सिसोम, सम ऑफ द माइक्रो बॉडीज, इसके अंदर गैस वैक्यूल भी होती है. ये सब आएगा व्हेन वी विल ओपन प्रोकैरियोटिक सेल. अभी एक सेल मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ, वो आपको पता है. ये सेल आपको पता है, उसका शेप बेप देखा, कुछ अलग है. एक यहाँ का मसल सेल सपोज, वो सिलिंड्रिकल होता है, तो शेप में वेरिएशन होता है. एंड these variations in the shape are on the basis of its function. इसका फंक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स. अगर किसी ने हमको यहाँ पर छू लिया तो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, वो ये सेल के द्वारा नहीं होगा, इससे होगा थ्रू दिस सेल. वेयर दिस सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. तो जिसको कॉन्ट्रैक्शन करना है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जिसको कंडक्शन करना है उसका ऐसा है, उसका शेप ऐसा है. Structurally, internal structure we are going to see of nerve cell as well as muscle cell. उसका भी एक लेसन है, नर्वस सिस्टम में ये आएगा, लोकोमोशन और मूवमेंट में ये आएगा. If we go to the plant body, the transportation of the water occurs through xylem. तो जो xylem का एक यूनिट होता है उसको ट्रेकेट बोलते हैं, वो ऐसे होता है पॉइंटेड. तो इसके अंदर से वाटर ऊपर जाएगा, यहाँ पर दूसरा होता है, तीसरा होता है, ऊपर जाएगा. तो जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका तो शेप इलोंगेटेड ही होना चाहिए.
ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो याद रखना सेप को कंसर्न उसका जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, उसके साथ है। हम अभी देखेंगे थोड़ी सी स्लाइड के अंदर डिफरेंट शेप का सेल्स होता है। ये सेल हमारे बॉडी में बहुत लंबा भी होता है, बहुत ही लंबा। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। एग इज ऑल्सो सेल, स्पर्म इज ऑल्सो सेल। सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक माइकोप्लाज्मा रहता है, इसके पास वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा भी इस लेसन में थोड़ा सा आएगा। ये सबसे छोटा सेल होता है। ये एक ग्रुप है, ये एक जीनस है, ये एक ग्रुप है। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल आते हैं, राइट? दैट विल सी। अभी जो आपके सामने मैंने यहाँ पर, ये बहुत ही प्रिमिटिव थिंग वी कैन से, बहुत ही प्राइमरी थिंग। हर एक बच्चे को इतना तो पता होना ही चाहिए था, मगर मैंने ऐसा सोचा कि भाई चलो ये सब पता नहीं है। तो अभी आज जो यहाँ तक का मैंने लेक्चर लिया, अभी मैं थोड़ी सी स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ। अभी यहाँ तक का जो लेक्चर लिया, उसके अंदर बात जो आई, बात वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला। प्रिमिटिव मेम्ब्रेन नहीं है, प्रिमिटिव में मेम्ब्रेन नहीं है। अंदर क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, ये सब क्या है, ये जब आप ये पढ़ोगे तब नहीं लिखा होगा। मगर आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, बिकॉज ये बहुत ही फंडामेंटल बायोलॉजी में आने वाला ही है इसी लेसन में। उसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल, चिक का सेल ले लो, ऑनियन पील का ले लो, उसके ऊपर मिथलिन ब्लू नाम का स्टेनिंग डाल दो, तो ये देखने को मिलेगा। सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। सेल वॉल बाहर प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अंदर होता है, सेल वॉल के बाद आता है, राइट? उसके बाद साइटोप्लाज्म, नहीं सॉलिड नहीं टोटली लिक्विड, और उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो, और मेम्ब्रेन वाली सब ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में बहुत सारी चीज आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया पावरहाउस आ गया, अपना किचन आ गया, क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी आ गई, वैक्यूल आ गई, रिबोसोम्स आ गए, माइक्रोबॉडीज अंदर थोड़ी थोड़ी होती है, ये सब हम देखेंगे। और पेरोक्सिजोम होती है। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रीओल उसका यूनिट है, राइट एंगल टू ईच अदर, उसका अरेंजमेंट हुआ होता है। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग अपन ने ली है, बहुत ही प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ली है। ये आपको याद रह जाना चाहिए। यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर एंजाइम, एंजाइम क्या है? हमारा जो लिविंग स्टेट है, साइटोप्लाज्म में हर एक एक्टिविटी होती है, वो हर एक एक्टिविटी एंजाइम के थ्रू सक्सेस होती है। हमारे बॉडी में हर एक एक्टिविटी के लिए एंजाइम चाहिए, वो एक्टिविटी को स्पीड अप करता है, स्पीड अप करता है। तो बहुत सारे एंजाइम का उसका नेमिंग आने वाला है, उसका फंक्शन आने वाला है। तो इसी की वजह से ये लिविंग स्टेट में रहता है, ये सब जिंदा रहता है, जिंदा रहता है। अभी ये मत समझना हाँ कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियम में सिर्फ इतना ही होता है, बहुत सारे होते हैं। पिल्ली, फिम्बरी, कैप्सूल, वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम, बहुत सारा होता है। ये तो सिर्फ ऊपर छल्ली बात है। इसके अंदर भी देखेंगे बहुत सारी चीजें, यहाँ पर साइटोस्केलेटन भी, इसके अंदर भी देखे बहुत सारी चीज देखेंगे। ये एक सिंपल सिंपल थिंग है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ओके, तो ये जो बॉडी वर्क है उसका फोटोग्राफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका आपको बच्चों करना क्या है, अच्छी तरीके से सुन लो। ये बॉडी वर्क मैंने यहाँ पर जैसे आपको पढ़ाया वैसे आपको भी बॉडी वर्क करना है। आपको एक बॉडी वर्क बुक बनानी है, उसके अंदर पहले पेज ये सब लिखना है, उसमें ये बॉडी वर्क करना है, ये सब आपको ड्राइंग करना है। आपके मोबाइल के ऊपर इसका पिक्चर आ जाएगा,
क्योंकि ये अभी ऐप में आप अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तो आपको ये पिक्चर भेजा जाएगा। आपको होमवर्क करना क्या है, इसको पहले बोर्ड वर्क कर लो। उसके अंदर मैंने क्या क्या सिखाया, आप एक बार अपना जो बोर्ड वर्क किया हुआ है उसके अंदर से पास थ्रू हो जाओ। ओके, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको मालूम होगा कि ये जब प्रोटीन आया था तब साहब ने बोला था कि अपन लोग जब वटाना चना खाते हैं, वाल खाते हैं, तो अपने को प्रोटीन उनमें से मिलता है। तो उसका केमिकल डाइजेशन होने के बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में से, ब्लड में से, हर एक सेल में वो उसका जो डाइजेशन हुआ होता है, उसका जो मोनोमर होता है वो अपने सेल में जाता है, वो मोनोमर फिर से बाइंड होकर पॉलीमर हो जाता है, प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये सब पास थ्रू होने के बाद आप एक कागज लो, उसके अंदर ये सब लिखो, लिखते जाओ, और हो सके तो देखे बिना लिखो। और ये जो कागज के अंदर लिखा, दूसरी बार पहले अपने नोट बनाई बोर्ड वर्क की, दूसरी बार एक कागज में लिखा, पहले हमने नोटबुक में, दूसरी बार कागज में। वो जो कागज है वही आपका होमवर्क हो गया। अभी आपको करना क्या है होमवर्क में, वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक है वो आपकी, जो यहाँ से मैंने आपको मटेरियल भेजे है उसके अंदर दिया गया है, उनमें से सिर्फ यही टॉपिक ओपन करना है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये अगर लेसन नंबर 8 है तो ये 8.3 होगा शायद, राइट। तो एक ही टॉपिक ओपन करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सेल क्या है नहीं पढ़ना है, सेल थियरी क्या है नहीं पढ़नी है, ऑर्गेनेल आगे नहीं पढ़नी है, सिर्फ एन ओवरव्यू ऑफ सेल, उसको पढ़ो। 2-3 लाइन पढ़ो, आंख बंद करके याद रखो। उसके बाद आगे पढ़ो, आंख बंद करके याद रखो। उसके बाद आगे पढ़ो, आंख बंद करके याद रखो। उसमें ये टॉपिक आया, ये आया, ये आया, इसकी बात आई, इसकी बात आई, इसकी बात आई, इसकी बात। उसके बाद ये जो टॉपिक है वो रिवाइज करो 2 या 3 बार। उसके बाद देखे बिना लिखो, ये आपका होमवर्क। तो एक होमवर्क ये अपना बोर्ड वर्क हो गया, एक होमवर्क ये थियरी हो गई। वो आप एप्लीकेशन में या फिर व्हाट्सएप में सबमिट कर दो। दिस इज हाउ यू आर टू डू योर होमवर्क, एंड दिस मस्ट बी मेंटेन फॉर 2 years। इफ यू फेल टू डू दिस, अगर उसमें कोई आलस आ गई तो समझ लो कि उसी क्षण से आपका पतन शुरू हो गया, डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इसके अंदर अपना एक सेंटेंस लागू पड़ता है, इफ यू रेस्ट यू रस्ट, इफ यू रेस्ट यू रस्ट, कंसिस्टेंसी मस्ट बी मेंटेन। हर एक बायोलॉजी का लेक्चर जब खत्म हो तब मैंने जो अभी यहाँ से पैटर्न दी, उसी की पैटर्न से ऐसे ही आपको होमवर्क करना है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 600 प्लस भी आएंगे और बायोलॉजी में 330 प्लस भी आएंगे। अभी तो बहुत ही एक प्राइमरी लेवल का ये लेक्चर मैंने लिया है। अभी हम जब आगे जाएंगे तब इसको भी खोलेंगे। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल, उनमें से कैसे ये क्रोमोसोम बन जाता है ये भी हम देखेंगे। इसका शेप कुछ अलग है, इसका भी अलग है ना, दैट वी विल सी। इट इज अवर सिलेबस, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, एंड वी मस्ट गो थ्रू दिस ऑल द थिंग्स, राइट। अभी इतना आपको करना है। अभी मैं आपको वो स्लाइड दिखा रहा हूँ डिफरेंट शेप की, जो कि अपनी टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी न्यूमेरिकल इन्फो है, वो भी आपको याद रखनी है। ओके, नाउ लेट वी सी सम ऑफ द स्लाइड्स and some of the most important informations are there which can be asked in the NEET paper. For example, suppose mycoplasma, it's a group of so many cells. This includes so many unicellular cells. It is the smallest cell. उसकी साइज क्या है, 0.3 म्यूएम in length general. Egg of an ostrich is the largest cell. ઓસ્ટ્રિચનું જે એગ હોય એ સૌથી મોટો સેલ કહેવાય, ઇટ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સેલ. સો ધીસ આર ધ ઇન્ફોર્મેશન ધેટ વી આર ટુ મગ. અત્યારે જ તમને યાદ રહી જવું પડે. તો એક બોલપેન લેવાની, એક રફ કાગળિયો લેવાનો, અત્યારે હશે જ તે, અત્યારે પણ તમે લઈ શકો. યુ કેન ટેક ઇટ, આઈ એમ ગિવિંગ યુ 30 સેકન્ડ. એક ગમે એ કોરો કાગળ લઈ લો અને એક પેન હાથમાં લઈ લો. ઓકે, અને જેવું કે તરત જ એવું કે ભાઈ ચલો માઇકોપ્લાઝમા સ્મોલેસ્ટ સેલ, સાઇઝ ઓલમોસ્ટ 0.3 મ્યુએમ ઇન લેન્થ હોય.
આ આપણને યાદ રહી જવું પડે, લખી નાખવાનું માઇકોપ્લાઝ્મા સ્મોલેસ્ટ 0.3 મ્યુએમ ફિનિશ. This kind of the questions are asked in the NEET paper directly and 4 marks. Each question has 4 marks. કેટલાય સ્ટુડન્ટ આળસને કારણે આવા માર્ક પણ ગુમાવે છે. આની અંદર ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, ऐसा है भाई. सेकंड, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल. याद रह गया, लिख डाला, अभी भूल जाओ. अभी उसका रिवीजन सतत करना है. कब करना है? जब खाने के लिए बैठो, जब जाने के लिए, तब भी इसका रिवीजन करना है. हाँ, सीढ़ियाँ अपनी घर में अगर है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 म्यूएम, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, ऐसे ऐसे. ये हमारा एक पार्ट बन जाना चाहिए. जैसे जैसे हम याद रखते हैं अगर कोई नया फ्रेंड हुआ उसका नाम, ये सब अपना नया फ्रेंड है उसका नाम है, याद रखो. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हार्डवर्क. આળસ કરી તો મરી ગયા, હવે આપણે પછી યાદ રાખશું, એમ નહીં, એમ નહીં. each and every word, each and every matter which is given in our book, in our material, must be understood very clearly and mugged. એની જે કોઈ પણ નીડ હોય એ આપણે એને કરવાનું જ છે, રાઈટ. હમણાં મેં આગળનું આ બધું જે અત્યારે ફિગર ડ્રો કરી, उसके अंदर मैंने एक रिबोसोम लिखा था. मालूम है आपको? रिबोसोम, इट इज एन ऑर्गेनेल. Ribosomes are observed in cytoplasm. It is located on the endoplasmic reticulum. It is also present in the mitochondria as well as in the chloroplast, and as well as it is located on the nuclear membrane too. હવે જોજો આ જે નીટની અંદર કઈ રીતનો તમને વિચાર કરતા કરે. તો ભાઈ આપણને રાઇબોસોમ્સના લોકેશન ટોટલ કેટલા મળ્યા? 5 મળ્યા. આપણી બુકમાં અત્યારે તમે વાંચશો તો ખાલી 4 જ લખેલા હશે. સાઇટોપ્લાઝમ હશે, એક એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ હશે, એક માઇટોકોન્ડ્રિયા હશે અને એક ક્લોરોપ્લાસ્ટ હશે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ ઓન ધ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન. તો એ પાછું ક્યારે આવશે? વેન વી વિલ બી સ્ટડીંગ અબાउट न्यूक्लियस. એનું એક આપણે આખું લેક્ચર હશે, उसके अंदर आएगा. यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा. तो ये कनेक्टिविटी अपने माइंड में मिलनी चाहिए, अदरवाइज मार्क बाहर नहीं निकले. तो अगर हमको पूछा गया सपोज कि इन एनिमल सेल वेर डू यू फाइंड राइबोसोम, पहला ज ऑप्शन में हूँ खबर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकोन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम एंड साइटोप्लाज्म. એટલે આપણે ઓલી ટેક્સ્ટ બુક નું સેન્ટેન્સ યાદ હોય, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ આપણે ટિક માર્ક કરીને વી આવીએ. क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में न हो, तो एनिमल सेल में राइबोसोम्स का लोकेशन कहाँ पर है, उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा. ये 4 का अगर कोई ग्रुप है एबीसीडी में, उनको सिलेक्ट करना है. अगर इनमें से सिर्फ 3 का ग्रुप है, एक नहीं है और बाकी का तो है ही नहीं, बाकी का आंसर है ही नहीं, तो ये जो 3 वाला ग्रुप वाला जो ऑप्शन है एबीसीडी में से, सपोज सी है, तो अपने को सी टिक मार्क करना है. जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों लोकेशन लिखे. दिस इज नीट, दिस इज नीट. बोर्ड में क्या आएगा? बोर्ड में सिंपल आएगा कि राइबोसोम्स आर लोकेटेड, और उसके बाद फिल द ब्लैंक, ब्लैंक कर देगा. नीचे 4 ऑप्शन, एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड विद इन द न्यूक्लियस. डायरेक्टली आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म. ये बोर्ड है. Now you are aware that what is the difference between board and NEET. साइंस साइंस ही रहता है. राइबोसोम का लोकेशन कोई भी बुक में, आप कोई भी इंटरनेशनल एडिशन ओपन कर लो, उसके अंदर सेम ही रहेगा. वो कैसे ट्विस्ट करके आपके सामने लाते हैं, उसका एग्जाम्पल हर एक लेक्चर में आएगा. अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी आएगा. हाँ, अभी अपन लोग एक और बात आज करने वाले हैं. ये जब स्लाइड खत्म होगी तब थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. आज का जो लेक्चर आपने पढ़ा उनमें से कितना आपको याद रहा, उसका टेस्ट विद द इमीडिएट एक्शन हो जाएगा. तो वो इमीडिएट एक्शन से हो जाएगा, वही आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ना. इट इज योर टेस्ट. टेस्ट तो होना ही चाहिए. तो ये हो गया
स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा 0.3, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग। अभी आगे बढ़ते हैं। ये अभी देखो शेप में भी वेरिएशन होता है। ये आरबीसी है, ये ऊपर से, ये साइड का व्यू है, बाइकॉनकेव है। अपनी रकाबी होता है ना, अगर आप ऊपर से देखोगे तो राउंड आएगी, अगर साइड में से देखोगे तो ऐसा। तो एक रकाबी आम મૂકો, એક રકાબી આમ મૂકો, રકાબી બેયને આ રીતે મૂકી દો, એવો એનો શેપ છે આરબીસી, રેડ બ્લડ સેલ્સ, राउंड अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी इंफॉर्मेशन है, दिस इज गिवन ओनली इन द फिगर। लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछेंगे डायरेक्टली आरबीसी का डायमीटर कितना होता है सिर्फ, अगर ये मगिंग नहीं हुआ तो मार्क गया 4, और अगर फांका मार दिया तो 5 गया, क्योंकि माइनस है। तो क्या लिखा है नीचे, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, डिफरेंट शेप। तो शेप अभी देखो इसका ऐसा आया, राउंड एंड बाइकॉनकेव। अभी दूसरे का ले लेते, ये डब्ल्यूबीसी, दिस आर इरेग्युलर, कई बड़े होते हैं कई छोटे होते हैं। अगर आप इसके अंदर जाओ, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी वैरायटी होती है ना। ये अपना डब्ल्यूबीसी, ये अपना फाइटर है, एंटीजन को मारते हैं। ये अमीबोइड, अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेग्युलर होता है। ये इरेग्युलर शेप वाला डिफरेंट काइंड्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं, एसिडोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसीलिए यहाँ ये 5 दिया गया, हर एक का एक एक है। सो दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है उसके हिसाब से अपन लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा जो वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम वाला एक लेसन आएगा, उसके अंदर इसकी डिटेल आएगी। ये देखो, लॉन्ग एंड नैरो कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल टिश्यू है। जो हमारा कोई भी ऑर्गन रहता है उसको बाहर से या फिर अंदर से उसके ऊपर लेयर बनाती है, इट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। शेप कुछ अलग ही है। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन, नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। देखा, लॉन्गेस्ट सेल अपने बॉडी में कौन सा है, आंसर क्या देना है, नर्व सेल। तो ऑप्शन मिलेगा लॉन्गेस्ट सेल में, एक नर्व सेल मिलेगा, एक आरबीसी मिलेगा, एक कॉल्यूमनार मिलेगा, और एक कोई भी सेल का नाम फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी मिलेगा, या फिर मसल सेल मिलेगा। आंसर देना है नर्व सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। उसको ट्रांसमिशन करना है तो उसको लेंथ में होना तो मांगता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए। ट्रैकेड इलोंगेटेड बिकॉज इट हैज़ टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। આમ જ જાય આવી રીતના, આમ હશે તો નહીં ચાલે, એને આમ જવા દેવાનું, વોટર એને ઉપર જવા દેવાનું। और उसका वो एक इलोंगेटेड होता है और अरेंजमेंट ऐसे होता है, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी। ये बहुत ही प्रिमिटिव, दिस इज सेल, दिस इज सेल। तो डिफरेंट शेप हम अभी देख रहे हैं। ये देखो, ये हाँ, हमारी बुक के अंदर हमारे मटेरियल में है, ये सब लिखा हुआ है। इसमें से भी एमसीक्यू आ रहे हैं, अभी लास्ट ईयर आया था ऐसे। जो हमारे मटेरियल के अंदर फिगर होती है उसमें से एमसीक्यू पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोफिल? एक लीफ ले लो, આપણે જેને પાંદડું પાંદડું કહીએ ને, તો એ જે લીફ હોય ને એમાં અપર મોસ્ટ એક થિન લેયર હોય, એક નીચેનું એક હોય થિન લેયર, એની વચ્ચે જે હોય ને ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેસોફિલ। એમાં આવા બધા સેલ પડ્યા હોય, એ રાઉન્ડ અને ઓવલ હોય। એન્ડ ધીસ આર ધ સેલ ધોઝ photosynthesize, they use water and CO2 to form glucose। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है। ये जो पेरिफेरल साइड में जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। उसके अंदर भी रिबोसोम्स रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिबोसोम्स रहता है, साइटोप्लाज्म में भी रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी रहता है। ये एक टाइप का रिवीजन ऐसे हो गया। सो यू विल कम टू नो दैट हाउ टू रिवाइज। रिवीजन करना मतलब ऐसा नहीं है, हाँ, एक बात अच्छी तरीके से सुन लो। रिवीजन डज नॉट मीन दैट यू हैव जस्ट गॉन थ्रू इट एंड यू जस्ट रिवाइज्ड एंड नाउ लेट इट बी, अभी उसको जाने दो, ऐसा नहीं है। You are to revise it for so many time within the day, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. Whenever you get 5 minute extra, 7 minute extra, you are to revise all the things. See, concept is this thing. If you understand it very well, and if you have just gone through once,
ये आपके माइंड के अंदर गया। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ब्रांच्ड नवसेली होता है, इलोंगेटेड ट्रैकेड होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मगिंग करना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो भी। शेप ऑफ द सेल में भी डिस्क लाइक, कॉल्यूमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेग्युलर, बहुत डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर जस्ट पास थ्रू वंस, उसके बाद कुछ भी नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास फिगर थी। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, उसकी साइज क्या है? 10 to 20 म्यूएम। अभी ये देखो नीचे क्या लिखा, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विथ अदर ऑर्गेनिज्म। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये चार की कंपैरिजन करनी है। ये पहला वाला बहुत ही बढ़िया है, बड़ा है और बढ़िया भी है। उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, उसके अंदर गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मगर वो रफ वाली है। ये देखो उसके ऊपर रिबोसोम, रिबोसोम साइटोप्लाज्म में भी है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दिया गया है। अपन एक एक को ओपन करके पढ़ने वाले हैं। साइज 10 to 20 म्यूएम। अभी देखो टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 म्यूएम, वो थोड़ा सा छोटा हुआ। यहाँ पर हमने जो ड्राइंग किया है वो ये मोटाइल वाला है, हा? उसके बाद प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अबाउट 0.1 म्यूएम। ये नाम याद रखना है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो साइज कम हुई ना। वायरसिस 0.02 to 0.2 म्यूएम। कोरोना वायरस, तो वायरस सबसे छोटा है। वायरसिस कैन सर्वाइव इन બેક્ટેરિયા। બેક્ટેરિયા ના સેલમાં કેટલા બધા રહી શકે? તો આપણા સેલમાં રહે તો તમે હવે જોજો 0.02 to 0.2 म्यूएम इन डायमीटर, और अपना सेल होता है 10 to 20 म्यूएम। बहुत सारे वायरसिस, ये कोरोना वायरसिस जब हमारे सेल के ऊपर अटैक करता है तो वो अंदर एंटर हो जाता है और अंदर बहुत सारे बन जाते हैं, राइट। तो ये सब न्यूमेरिकल इन्फो 10 to 20। अभी जो बॉल पेन है उसमें यूकैरियोटिक टिपिकल 10 to 20, उसके बाद बैक्टीरियम 1 to 2, उसके बाद पीपीएलओ 0.1 म्यूएम, उसके बाद वायरस 0.02 to 0.2 म्यूएम। ये मगिंग के लिए है। इसको नहीं देखना है, इसमें क्या देखना है, डॉट डॉट डॉट, ये तो वायरस है। वायरस के फॉर्म अलग अलग होते हैं, कोरोना का अलग, एचआईवी का अलग, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के अंदर रहते, फॉर एग्जांपल इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में जो वायरस रहते हैं उसको बोलेंगे इस्चेरिशिया कोलीफेज, उसका भी अलग, राइट। तो अभी यहाँ तक का हमने रखा आज का लेक्चर, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करनी है, ओके।